नमस्कार दोस्तों, एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी भारत सीरीज में हम बात कर रहे हैं हमारे भारत की। पहले का भारत कैसा था, अब का कैसा है और आजादी के 100 वर्षों के बाद का भारत कैसा होगा। इसी सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं इंडस्ट्री 4.0 की। अब इंडस्ट्री 4.0 की बात करने से पहले मैं आज के गेस्ट स्पीकर, उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। आज की गेस्ट स्पीकर हैं मिस दीप्ति बी, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के कॉलेज में, तेलंगाना गवर्नमेंट के अंडर आता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप रिसर्चर और स्कॉलर हैं जेएनयू में, और आपका रिसर्च टॉपिक है एमएसएमईज। तो ये इंडस्ट्री के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ बहुत ही क्लोजली जुड़ी हुई हैं और इंडस्ट्री 4.0 एक्सपर्ट हैं। इंडस्ट्री 4.0 की इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, सब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानती हैं, और साथ ही आप ऑथर भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सर। तो दीप्ति जी, प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हमारा पैटर्न है कि हम आपके बारे में कुछ जाने, हमारे ऑडियंस जाने आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, आपके स्ट्रगल्स के बारे में, आपके चैलेंजेस के बारे में, और सबसे बड़ी बात, आप बीइंग अ वुमन, आप की क्या चैलेंजेस आपने फेस किए लाइफ में। और क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी, आपने एमएसएमई चूज किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, इंडस्ट्री 4.0 आपने चूज किया, तो आप इंडस्ट्री के बहुत ही करीबी उसमें हैं, जो कि स्पेशली अगर हम एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात करें या वुमेन की बात करें, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग फील्ड है ये। तो आप अपनी जर्नी हमारे ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करें। श्योर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू करना चाह रही हूँ क्योंकि यू हैव इनवाइटेड मी फॉर दिस प्रोग्राम। और कमिंग टू मी, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, जस्ट रिसेंटली अपॉइंट हुई हूँ, एंड आई एम ऑल्सो अ रिसर्चर इन जेएनयू, and I'm doing my research on MSMEs and the adoption dynamics of MSMEs in the uh, regarding to Industry 4.0. Coming to the challenges, as a woman researcher, I have faced so many challenges in my PhD level, doing the groundwork, collecting the data from MSMEs. But वो journey जो है, it was a beautiful journey, and today I have so much of information regarding Industry 4.0 and how MSMEs are going to adopt Industry 4.0 in the coming next 20 years or 30 years. Industry 4.0 is going to change the landscape of MSMEs. So मैं इसी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ रिसर्च करी हूँ. So I'm very happy today to present my views in front of everyone regarding the topic of my interest. Thank you, Miss Dipti. Let's start our question answer session with this first question, that what is Industry 4.0, as you are doing research and scholar in Industry 4.0 and your primary subject is this, and what is Industry 4.0 and why should Indian MSMEs should adopt this? What will be the benefit? Yeah. Okay. Industry 4.0, actually, it's a fourth industrial revolution. Since childhood, we learned so much about the first industrial revolution, second industrial revolution, and recently in 1970s, we heard about the third industrial revolution. Currently, whole world is adopting the fourth industrial revolution. It is basically a digital technological revolution, we can call it as, because daily we are using so many technologies like AI, big data analysis. We are coming across a new technology every day. So this fourth industrial revolution is a combination of various technologies which are very new in nature, and these technologies will create a parallel digital world which helps the manufacturing sector to increase their efficiency actually.
I can say that these technologies include artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, big data analysis. There are n number of technologies. There is no need to adopt all these technologies. Like, for example, I'm an MSME owner. I run a small factory. For my factory, the AI technology is useful. In that case, I can use only AI technology. I will be a Industry 4.0 adopter then. There is no need to use all the technologies. There are based on the industry requirement or based on our scalability, we can use the technologies which are useful for us. And this fourth industrial revolution significantly increases the efficiency and productivity also. By using the Industry 4.0 technologies, companies can reduce the defects, and they can also produce very sustainably. We are talking about sustainable manufacturing and recycling due to the climate change effect and due to the pollution that all we are facing today. So the Industry 4.0 leads to the sustainable manufacturing so that the companies can contribute to the NDCs of India. So Industry 4.0 is all about adopting digital technologies in the manufacturing unit so that companies can increase their efficiency and reduce their defects and all. There are so many advantages by adopting Industry 4.0 a company can occur actually. दीप्ति जी, कोई कुछ भी जब हम मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है या कोई नई टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी नया इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें बेनिफिट्स तो होते ही हैं। जैसे आपने अभी बेनिफिट्स इंडस्ट्री 4.0 के बेनिफिट्स बताए, तो उसके चैलेंजेस भी साथ ही पैरेलली होते हैं। तो व्हाट आर द बेसिक चैलेंजेस वन एमएसएमई फेस? Coming to the challenges, sir, there are a number of challenges that MSMEs can face because Industry 4.0 is basically designed for multinational companies, not for MSMEs basically. But if you see in the market, if MNCs are adopting Industry 4.0 and they are coming up with the customized products and defect-free products, then MSMEs will lag in their capabilities. मतलब उनका प्रोडक्शन जो है, उनका एक्सपोर्ट जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं क्योंकि एमएनसीज ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं और वो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 को यूज करके। तो अभी मार्केट में इस तरह का एनवायरनमेंट जनरेट हो गया है कि एमएसएमईज मस्ट एंड शुड अडॉप्ट इंडस्ट्री 4.0 इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। सो एमएसएमईज जो चैलेंज फेस कर रहे हैं मेनली वो फिनेंसेस है। मतलब कोई भी नया टेक्नोलॉजी अगर उनको अडॉप्ट करना है तो उनको पहले थोड़ा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो सब्सटैंशियली बहुत टाइम लेता है। मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1-2 साल में उसका रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो इंडस्ट्री 4.0 है अगर एक बार उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो उसका जो बेनिफिट है थोड़ा टाइम लेके आएगा उनको, और तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा टाइम लेगा। और सेकंड बात जो है उनको फाइनेंस अच्छी तरह से बैंक से नहीं मिल रही है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए। मतलब कोई कस्टमाइज्ड लोन प्रोडक्ट कोई अवेलेबल नहीं है इसके लिए। और तीसरी बात जो है ह्यूमन रिसोर्सेस की, हमारे मार्केट में अभी स्किल्ड वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। मतलब अगर आप देखेंगे कोई भी एमएसएमई जाके उधर स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत कम आपको नजर आएंगे। अगर वो लोग अडॉप्ट करना भी चाहते हैं और स्किल्ड वर्कफोर्स को वो लेना भी चाहते हैं तो बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें। जो इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड पर्सन जो है वो सैलरी तो बहुत एक्सपेक्ट करता ही है, वो तो सब्सटैंशियल कॉस्ट हो जाता है उनपे। और तीसरी बात जो है जब वो इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट करने की सोचते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम आ गया कल तो हमको पूरा ये जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का जो हमने अभी सेटअप किया है तो उसको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। उनमें बहुत डाउट्स है उन। और एक बात जो आ गई जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चली कि टॉप मैनेजमेंट की जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स अडॉप्शन वो इतना मतलब वेलकमिंग नहीं है इस मूवमेंट में, क्योंकि मार्केट में एमएसएमईज बहुत कम अडॉप्ट कर चुके हैं इंडस्ट्री 4.0 को। और इसके बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि अवेयरनेस की कमी बहुत
ज्यादा है इंडस्ट्री 4.0 के बारे में। और गवर्नमेंट ने भी बहुत बीच बीच में इंडस्ट्री 4.0 को पुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश तो की है, लेकिन अभी वो इतना मतलब सही तरह से उन तक रीच हो नहीं पाई। तो ये सारे चैलेंजेस हमको दिखाई दे रही है अभी तो, लेकिन मेजरली हम बोल सकते हैं कि उनको अवेयरनेस की कमी है और फाइनेंसेस की कमी है बहुत। जी। तो अवेयरनेस एक प्रॉब्लम तो होगी, अवेयरनेस। दूसरी प्रॉब्लम होगी फाइनेंसेस। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने बीच में एक बात बोली थी एडॉप्शन की, माइंडसेट की, है ना? तो हायर लेवल पे या एडमिन लेवल पे उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता, उनका माइंडसेट नहीं है। उसके लिए कुछ आपकी तरफ से, कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं या हाँ। क्योंकि नेचुरली जैसे आपने बताया कि एमएनसीज ने अडॉप्ट कर लिया है, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है ना? तो नेचुरली है, जब उन्होंने अडॉप्ट भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया, एमएनसीज के पास फंड्स की कमी नहीं है, और उन्होंने एक्सपोर्ट लेवल क्वालिटी को अचीव करने के लिए उन्होंने हर चीज को इन्वेस्ट भी कर दिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, राइट? बट जो इंडिया का एमएसएमई है अभी, जो उनको भी तो ग्रो करना है। तो उनको ग्रो करने के लिए जो हम बात करते हैं भारत के 100 सालों की इंडिपेंडेंस की, कि भारत पहले क्या था, अब क्या है, आगे 2047 में क्या होगा, तो उसके लिए उनका वो माइंडसेट डेवलप होना जरूरी है। माइंडसेट के साथ विजन होना जरूरी है, तभी वो आगे, अभी थोड़ा सा पेन लेंगे तो वो उतना ग्रो कर पाएंगे, 10x में या मल्टीफोल्ड्स में ग्रो कर पाएंगे। लेकिन उसके सही। लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए, अवेयरनेस के लिए, माइंडसेट के लिए, उनको विजन, एक विजनरी, एक एडवाइस देने के लिए, उसके लिए क्या चीजें इंप्लीमेंट की जा रही हैं, ये आप हमें बताएं थोड़ा सा। जरूर सर। अभी एमएसएमएस के अंदर अवेयरनेस डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट जो रन कर रहा है, उसमें इंडस्ट्री 4.0 को बहुत सारा पुश मिल रहा है। मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्री 4.0 को पुश कर रही है कि एमएसएमईस को अडॉप्ट करना चाहिए, कि अभी क्योंकि अभी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं बाई 2025 और 26। जी। तब तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत होगा, मतलब 1 ट्रिलियन तो मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएगा। और एमएसएमईज जो है वो अभी हमारे यहाँ से 30% जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही है, और दे आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 40 to 50%। तो अभी उनको इंडस्ट्री 4.0 अडॉप्ट करने का मतलब कंपलसरी है उनको, तो इसीलिए गवर्नमेंट मेक इन इंडिया में पुश कर रही है, और जो गवर्नमेंट का पीएलआई स्कीम है उसमें भी पुश कर रही है। और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन गवर्नमेंट जो 2014 से प्राइमरी इंपॉर्टेंस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को दे रही है एमएसएमईस में। इसीलिए जो हमने रिसर्च किया तब हमने देखा कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो एक लेवल पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन कर चुकी है। मतलब जो डे टू डे उनका एक्टिविटीज है वो टेक्नोलॉजी को यूज करके कर रही है। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो सकता है, और जो डेली उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सकता है, वो सभी वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। मतलब वो एक तरह से रेडी है इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट करने के लिए। बस उनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस लाने की जरूरत है। इसीलिए हम गवर्नमेंट जो है ना, मैं अभी गवर्नमेंट उनको जो अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं जो एमएसएमईस का, तो वो कंडक्ट करनी चाहिए। वो अभी नहीं हो रहा है, मतलब मैंने सुना है कि वो प्लान्ड में है, अभी तो होगा। मतलब जब वो हो जाएगा तो एमएसएमईस के अंदर अवेयरनेस बढ़ जाएगी, और बाय 2025 और 26 मोस्टली एमएसएमईस मोस्टली अडॉप्ट इंडस्ट्री 4.0 होपफुली। मैं इसी के साथ अपने ऑडियंस के साथ अपडेट करना चाहूंगा कि जैसे हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोग्राम्स चलाए, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, तो इंडस्ट्री 4.0 को भी अब उस प्रोग्राम में लिया गया है कि आपको कंपलसरी करना है, कंपल्शन है उसकी, क्योंकि उसमें आप ही का बेनिफिट है। आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये इंडस्ट्री 4.0 जो है, एक ये आप सबके लिए गेम चेंजर है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो उसी के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो हम अगर बात करें कि 100 वर्ष
आज़ादी के भारत के 2047 में। तो कैसा होगा अगर आज हम अडॉप्ट करेंगे, अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, अपना एक हायर विजन के साथ चलेंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा। पिछले एपिसोड में डॉक्टर विक्रम जी ने बोला था कि 2024 का भारत जो है राम राज्य होगा और सभी तरफ ग्रोथ होगी। और उससे पहले हमने बात की थी वैदिक कल्चर की, उससे पहले हमने बात की थी वुमेन एम्पावरमेंट की। तो ये जो सारी चीजों का एक साथ समन्वय है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, स्वच्छ भारत अभियान है, वुमेन एम्पावरमेंट है, योग योग है, योगा को प्रमोट किया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। हमें इसको खोना नहीं चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी को तो अडॉप्ट करना ही है। और इसके अलावा हमारी एक इसके साथ ही जिम्मेवारी बनती है कि भारत का नाम अब हर जगह इज्जत से लिया जाता है, देश विदेश में। हमें उसको सामने रखते हुए हर काम करना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे हमारे वापस नाम को धब्बा लगे। अब हमें ग्रो करना है और अपने साथ देश का भी नाम रोशन करना है। जो रोशन है उसको संभालना भी है। तो अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कि अभी हमने जैसे बात की दीप्ति जी, हम जैसे हमारा ये भारत सीरीज चल रहा है, भारत की बात करते हैं हम, हमारे भारत की बात करते हैं और हम 100 वर्ष की इंडिपेंडेंस के बाद के पीरियड की बात करते हैं कि 2047 में भारत कैसा होगा। तो अब हम साथ ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात करते हैं। अब हमने साथ ही विजन की बात की, माइंडसेट की बात की। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में क्या होता है। विजन की बात हम सब कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता लगता कि करना क्या है। बातें सब करते हैं लेकिन करना क्या है ना। तो व्हाट हाउ every MSME can contribute in this, apart from vision, apart from implementation, how they can contribute, what other things they can adopt. एमएसएमई जो है सर, हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है। तो वो जो भी प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद जो है पूरा हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो क्या बोलते हैं लाइफलाइन है एमएसएमई। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी इंडिया ग्रो कर रही है और वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो उनको जो एक्सपोर्ट मार्केट है उन पे कंसंट्रेट करनी चाहिए। जो एक्सपोर्ट वो करते हैं तो इंटरनेशनल क्वालिटी के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इंडियन में जो है इंडियन मार्केट जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उनको एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जो एक्सपोर्ट में भी डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट जो है वो बनानी पड़ेंगी। और उनको जो कम से कम डिफेक्ट्स के साथ और कम से कम वेस्टेज के साथ प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात आती है इधर कि उनकी मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग के लिए वो नया टेक्नोलॉजीज जो है अभी मार्केट में है, जो अभी सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं और जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू करते हैं और जो बहुत सारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स जो है उसको यूज करके करते हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो मार्केट है वो ट्रेडिशनल मार्केट की तरह नहीं है। मार्केट का डायनामिक्स चेंज हो गया है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जो है वो हमसे आगे है। और जो फॉरेन कंट्रीज जो है वो एक स्टेप आगे में है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में। तो हम 2 स्टेप आगे अभी डालना है हम, मतलब थोड़ा ज्यादा पेस के साथ इम्प्रूव करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। और इसके साथ ना जो हमारे एक्सपोर्ट है वो ज्यादा बढ़ेंगे और इंडिया के प्रोडक्ट्स जो है ग्लोबली उनका नाम मतलब शाइन हो जाएगा। मतलब इंडिया एक अभी तक सर्विस सेक्टर के ऊपर इंडिया को जानते हैं लोग। तो हमको ना इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जानने के तरफ लेके जाना पड़ेगा। अभी जो अभी 2047 हमारा 100 ईयर्स है तब तक। तो इसमें एमएसएमई जो है वो मेजर रोल प्ले करेंगे, उनका ही रोल वाइटल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो वो पूरा एमएसएमई में ही ज्यादा है। तो
इसीलिए एमएसएमईज को अभी जो एडॉप्शन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के थ्रू इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी एमएसएमईज के ऊपर। जी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली दीप्ति जी ने। हमें अभी हमारी पहचान जो है वो सर्विस इंडस्ट्री से है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर अपनी पहचान बनानी है तो हमें क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना होगा, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट के ऊपर, अब जैसे एक्सपोर्ट में चाइना है, चाइना से हमें क्वालिटी प्रोडक्ट भी आता है और हर लेवल की क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है, तो वो फोकस करते हैं। और अब हमारी बारी है, हमें आगे अपना देश का नाम रोशन करना है, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है, भारत नंबर 1 बनने जा रहा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अब जो है जनरेशन को एसेट माना जा रहा है। क्योंकि भारत को यंग इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि भारत की जो 50% से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, उनका एवरेज एज जो है 25 ईयर्स है। तो हम ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप कर चुके हैं, उस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी हमें मिल गया है, स्किल इंडिया भी मिल गया है। तो अब हमारा जो अगला कदम है वो क्वालिटी के ऊपर होना चाहिए, और एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो जो चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी है, जैसे इंडस्ट्री 4.0 है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारी एफिशिएंसी बढ़े, कम समय में हम ज़्यादा डिलीवरेबल्स दे सकें। तो इन बातों का हमें ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। तो दीप्ति जी, आज मैं समझता हूँ कि इतना ही सफिशिएंट होगा हमारे एमएसएमईज के लिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा इंडस्ट्री 4.0 का। तो इसके अलावा आप अगर कुछ प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए कुछ कहना चाहें, कुछ गाइडलाइंस देना चाहें हमारे एमएसएमईज को, तो आप प्लीज दीजिए, फिर आप इजाजत जरूर कंक्लूड कर। जरूर। जैसे आपने बोला कि अभी इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड में चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है, क्योंकि अभी इंडिया जो है बहुत सारा वर्किंग पॉपुलेशन में है, मेजॉरिटी वर्किंग पॉपुलेशन है अभी इंडिया में। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छी तरह से यूज करने के लिए एमएसएमई जो है वही एक मतलब प्राइमरी सोर्स है, मतलब इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छी डायरेक्शन में चैनल करने के लिए। तो अभी एमएसएमई को टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करके, इंडस्ट्री 4.0 अडॉप्ट करके बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है कंट्री में, ताकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वेस्ट ना जाए। और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर जो हमने रिसर्च किया है, तो उससे हमको पता चला कि जो अवेयरनेस लेवल्स जो है वही कम है। तो उस अवेयरनेस लेवल को ना इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा वो कोशिश करे, मतलब गवर्नमेंट के तरफ से भी कोशिश हो रही है, तो अपने खुद से भी एक कदम आगे बढ़ाए और एक स्टेप डाले कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की तरफ, सो दैट वो अपना कॉम्पिटिटिवनेस जो है मार्केट में बढ़ सकती है उससे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ एमएसएमईज को कि एक बार इंडस्ट्री 4.0 के बारे में आप थोड़ा बहुत जाने और एक स्टेप आगे डाले उसके अडॉप्शन में। और गवर्नमेंट की सहायता तो 24/7 है एमएसएमईज को। तो मेरे तरफ से उतना ही। जी, थैंक यू। थैंक यू दीप्ति जी। इसी के साथ में आज का प्रोग्राम करने को मैं इजाजत चाहूंगा। प्रोग्राम हमारा समय हो गया है। और दोस्तों, आज हमने इंडस्ट्री 4.0 की बात की। दीप्ति जी ने हमें बताया कि इंडस्ट्री 4.0 के बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन चैलेंजेस कुछ भी हों, बेनिफिट्स कुछ भी हों, हम बेनिफिट्स तभी ले सकते हैं और चैलेंजेस को ओवरकम तभी कर सकते हैं जब हमारा माइंडसेट होगा। और माइंडसेट तभी होगा जब हमारा एक विजन होगा। तो हमें बड़े विजन के साथ आगे बढ़ना है, माइंडसेट बनाना है और इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट करना है, ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और हम देश विदेश में अपना इंडिया का नाम मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे एक अपना मेक इन इंडिया, पूरे ग्लोबली हम उसको मेक इन इंडिया को प्रेजेंट कर सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक और गेस्ट स्पीकर के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू जी।